لکھا ہے اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کو منت کر کے کہا اے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف ہے. اس نے اس سے کہا میں آ کر اسے شفا دوں گا. صوبیدار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں. اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے. یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا. آپ کو پڑھے اس میں جانے یہ بیان جو کہا صوبیدار اور یہ صوبیدار جو ہے مذہبی طور پر یہ یہودی نہیں ہے یہ رومی ہے. کیونکہ جب مسیح یسوع کا دور تھا تو اس وقت رومی اس علاقے پر قابض تھا. عالمگیر سلطنت کیسر کے پاس ہے اور کیسر کی طرف سے ہیرودیس سے اعظم باقی جو بعد میں ہیرودیس اینٹیپاس وغیرہ بائبل میں آپ کو ساری تفصیل جو ہے ان حاکموں کو ملتی ہے. اور یہ ذیلی حکومت تھی اور یہ بادشاہ جو ہیرودیس بادشاہ ہے یہ نسل رومی تھا اور جس تخت پر بیٹھا تھا دراصل وہ تخت یہودیوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے اس تخت پر بیٹھ گیا لیکن یہ ناجائز طور پر اس تخت پر بٹھا دیا گیا اور اب تک اس تخت پر کوئی یہودی نسل سے کوئی شخص جو ہے براجمان نہیں تھا. اور یہ ذیلی حکومت فوجی رومی تھے وہاں اور وہاں یہ صوبیدار جو ہے جس کے نیچے 100 شخص کو ہے وہ انڈر اس کے یا ماتحت تھے خود بھی کہہ رہا نا کہ اگر میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے ایک سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے. تو میں اسے دیکھتا نہیں جسے کہتا ہوں اسے دیکھ تو نہیں سکتا آرڈر کیا جاتا ہے تو بس آرڈر کرتی ہے اور ماتحت جو فوج ہے وہ اس پر عمل کرتی ہے. سو یہاں پر دو باتیں ہیں ایک ہے دیکھنا اور پھر ایک ہے بغیر دیکھے کسی بات کا یقین کرنا کہ ایسا ہی ہوگا یا ہوا ہے یا ہو جائے گا. صوبیدار کا نوکر بیمار ہے اور بیماری کیا ہے اس کو فالج ہے اپاہج ہے خود ہل نہیں سکتا اور یہ صوبیدار جو ہے کہ اپنے اس نوکر کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہے ساتھ رہتے ہوئے پولیس محبت ہو جاتی ہے. اس نے فکر کی ہے اپنے نوکر کی فکر کی ہے. نوکر نہیں آیا یسوع مسیح کے پاس نوکر کے بہاف پر خود صوبیدار جو ہے وہ پہلے تو بزرگوں کو بھیجا کی نیت میں جو ترتیب ہے بزرگوں کو بھیجا کہ اسے کہو کہ میرا نوکر بیمار ہے اسے شفا دے. پھر یہ بات قبول کیا ہے تو صوبیدار جو ہے اس کی فکر کر رہا ہے. ایک مقام پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے کسی گھر میں بھیڑ اتنی تھی کہ راستہ نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے چھت کھول کر گھبرائل کھول کر اس بیمار کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے لا کر رکھ دیا اور مسیح نے خود کا ایمان لانے والوں کا ایمان دیکھ کر اسے شفا بخشی. بعض اوقات تو ہم جاتے ہیں بیمار عورت کا پڑھ رہے ہیں اس نے کہا کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھوڑوں. وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی. حالات کیا تھے کہ سارا روپیہ پیسہ طبیبوں میں خرچ ہو چکا ہے ساری امیدیں سارے دروازے بند ہو چکے ہیں لیکن ایک ہی دروازہ تھا جو اس وقت کھلا ہوا ایک ہی کلینک اور ایک ہی ڈاکٹر تھا جو 24
घंटे अवेलेबल है। एक मिसाल दी जाती है, ये जो वक्त है, ज़बान व मकान की जो कैद है, तो किसी शख्स को किसी कुत्ते ने काट लिया, सामने क्लिनिक था, वो चला गया, तो क्लिनिक में जो डॉक्टर था उसने कहा कि ये टाइमिंग पढ़ो और देखो कि ये क्लिनिक का वक्त अब खत्म हो गया, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम मालूम है, पढ़े लिखे नहीं हो। तो जिसे कुत्ते ने काटा था वो कह रहा है कि पढ़े लिखे होने का मेरा मसला नहीं है, मुझे तो पढ़ना लिखना आता है, कुत्ते को नहीं आता। उसे ये पता नहीं था कि ये टाइम नहीं है काटने। तो खैर वो तो अपने क्लिनिक के वक्त पे दरवाजे बंद करके चले जाते हैं, लेकिन एक दरवाजा हमेशा ही खुला रहता है, और वो दरवाजा है खुदा का दरवाजा, जिसके बारे में लिखा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। रात को खटखटाए, दोपहर को खटखटाए, 3 बजे खटखटाए, जब सारी दुनिया सो रही हो तो वो जाग रहा होगा। हालेलुया। एलिया के उस वाक़े में जब एलिया ने कहा कि हाँ उछलो और शोर मचाओ और अपने आप को जख्मी करो, क्योंकि तुम्हारा देवता हो सकता है कि वो सफर में हो सकता है कि सोया हो, और जरूर है कि वो जगाया जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, इस्राएल का खुदा ना ऊँघता है और ना आमीन। वो मदद के लिए हर वक्त मुस्तैद, जब भी आप उसे पुकारेंगे वो जवाब। बात हम ईमान की बात करते हैं तो एक ईमान मुतहम्मिल ईमान है और एक कारकुन ईमान। कई दफा खादिम के ईमान से लोगों को शिफा मिलती है, कई दफा लोगों के ईमान से बीमार को शिफा मिलती है। और यहाँ पर सूबेदार का जो मामला है वो यही है कि यह आया है और उसने दरखास्त कि मेरा खादिम बीमार है, किसी पर हाथ रखे गए, किसी पर हाथ रखा गया, कोड़ियों पर हाथ रखा, वो शिफा पा गए। अंधे की जो जन्म का अंधा था, खुदावंद यीशु ने वहां जो तरीका कार इख्तियार किया वो थोड़ा फर्क था। मिट्टी ली और उसे साना और उसकी आंखों पर लगा दी और कहा कि शलोक के चश्मे से जाकर धो ले। वो बड़ा जबरदस्त मौजज़ा, बड़ी लेने हुई उस मौजज़े पर भी। फकीरों फरीसियों ने काफी उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन जिस चीज को दबाया जाए वो उतनी बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में ये बात, ये मौजज़े का जिक्र फैल गया और खुदा की तमजीद हुई। तो मिट्टी सानी है वहां पर। एक जगह पुराने हैदराबाद में हम पढ़ते हैं कि नुमान कोड़ी पड़ोस के मुल्क से उसने सुना, किसी लड़की ने तो असीर होकर वहां गई, उसने कहा कि हमारे सामरिया में एक नबी है, अगर ये नुमान वहां होता तो इसे वो शिफा दे दो। तो जब उसने ये सुना कि कोई शख्स है मेरे इस मसले का हल किसी के पास है, तो वो बड़े पूरा एक जलसा लेकर, लोगों को लेकर और लंबा सफर करके बहुत से तहाई देकर वो अलीशा के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। और अलीशा ने अंदर से जहाजी को कहा कि इससे कहो जाकर गर्दन में 7 बार होता बार तो कुछ शिफा पा जाए। नुमान कोड़ी के शिफा पाने का क्या तरीका था? अलीशा ने कहा कि इसे कहो जाकर कि गर्दन में दरिया गर्दन जाए, 7 बार होता मारे तो ये शिफा पा जाए। तो नुमान वहां पर कंफ्यूज हो गया और परेशान भी हुआ, कहता है कि मैं तो ये समझा जब वो आगे मेरे बदन पे हाथ फेर कर दुआ करेगा मेरे लिए, मैं शिफा पा जाऊं। ये क्या बात है कि गर्दन में इसने क्या हमारा इस्तेमाल किया, क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या इज्जत की हमारी। तो नौकरों ने कहा कि तुझे यही तो कह रहा है, कौन सा मुश्किल काम कहता है, यही तो कह रहा है कि जाकर 7 होते मार तो शिफा पा जाएगा। तो देख, तो कहने लगा कि मेरे इलाके में भी तो दरिया बाना पर है, मैं इससे ज्यादा अच्छे दरिया, तो ये बात नहीं है, होता मार। खैर उसने 7 बार जब होता मारा तो नुमान कोड़ी सर से पांव तक दिखा कि उसका बदन
एक बच्चे की मानद हो गए, शिफा पाओ के कारण। कई तबीबों के पीछे भागे गए लोग शिफा के। वही औरत ने कहा कि पोशाक का किनारा छू, कई जगह पर मिट्टी सान कर जो है मसीह ने, कहीं तेल मलकर, मुख्तलिफ तरीके नजर आ रहे हैं। सूर पर एक ही औरत आई और कहने लगी, पीछे से दरखास्त कर रही थी, ऐ खुदावन मेरी बेटी को शिफा दे, एक बदबू उसे सताती है। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि इस्राएल की भेड़ों के सिवा मैं किसी के पास भेजा नहीं गया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। तो कहने लगी क्या है खुदावन को जो टुकड़े मालिकों की मेज से रोटी डाले टुकड़े दे। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा इस ईमान के मुताबिक जा, बदरू तेरी बेटी में से निकल गए। ये ईमान भी। और यहाँ खुदावन यीशु मसीह ने सूबेदार की जो तारीफ की है वो ये है कि मैंने ऐसा ईमान पूरे इस्राएल में भी नहीं पाया। अब ईमान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में से। ठीक है, ईमान सुनने से पैदा होता है। लेकिन ये तो साहिब कलाम भाई उसके पास तो बाइबल तो नहीं थी तो ये पढ़ता था। एक बात की इसे पहचान, अब कुछ हमने भी तो करना है। लाजर को मसीह ने जब जिंदा किया था तो कब्र का पत्थर मसीह ने नहीं हटाया, उसके लिए मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ, जाओ तुम जाओ इस पत्थर को हटाओ। तो कई दफा पत्थर हटाना हमारा काम है, मुर्दा जिंदा करना यीशु मसीह का काम। अजी कहने सारा कुछ आप ही हो जाए, ऑटोमेटिक नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक। निजात के लिए भी इकरार उसे किया जाता है, दिल से ईमान लाया जाता है ये मुर्दों में से जिंदा हुआ और मेरा खुदावंद है, इकरार करना पड़ता है। आमीन। हम कहते हैं, कई दफा लोग कहते हैं ताजा ईमान कमजोर है। हमारा ईमान कमजोर हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी कुदरत छोटी नहीं होती। उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, उसका काम हाँ ये बात भी है कि हमारा ईमान तो होना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारे मकामात पर तो लोगों का ईमान देखा गया, और अब जो ये जो नौकर है जो मालिक ज़्यादा है वो कुछ नहीं कर सकता। वो औरत तो घूमती रही तबीबों के पास, चल फिर सकती है, चल फिर भी नहीं सकती, इसकी मदद पूरी तबीबों के पास भी इसके मैं भी के लेकर गए हूँ। लेकिन यहाँ ये हमें मिल रहा है कि वो यीशु मसीह के पास खुद आ गया, पहले बुजुर्गों को भेजा और फिर खुद आया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसे अब देखिए खुदावंद यीशु मसीह की भी बड़ी बड़ाई यहाँ पर बड़ी जबरदस्त है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं भी जाना हूँ, तो बिना टाइम हो गया मैं जा नहीं सकता, वो पढ़िए। यीशु मसीह ने बड़ी प्राप्त दिली का मुजाहरा और यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर तू चल, मुझे लेकर चल, या चल हम तेरे पीछे आते हैं, तेरे घर आज विजिट करेंगे और शिफा देंगे। यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं आकर उसे शिफा दूंगा। और सूबेदार यहाँ पर ये कह रहा है, ऐ खुदावंद मैं किसी के मातहत और सिपाही मेरे मातहत, मैं जानता हूं कि जब मुझे कोई हुक्म होता है तो मैं अमल करता हूं, और जब मैं हुक्म करता हूं, किसी नौकर से कहता हूं, किसी सिपाही से ये कहता हूं जा तो वो जाता है, कहता हूं आ तो वो आता है। इसी तरह तू कह दे तो मेरा फादर शिफा है, जुबान ही से कह दे तो मेरा फादर शिफा है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने, और कितना खूबसूरत बयान है ये। सूबेदार कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तुझे ही से फरमा दे, क्योंकि मैं जानता हूं
کہ میں کسی کے ماتحت اور سپاہی میرے ماتحت ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے پاس وہ اختیار ہے. جس طرح میرے کہنے سے میرا اختیار عمل میں آتا ہے, اسی طرح تیرے کہنے سے یہ اختیار عمل میں لازمی بات ہے کہ یہی بات ہے جو میرے پاس جو اختیار ہے, اسی طرح تیرے پاس بھی ایک اختیار ہے, اور وہ اختیار شفا دینے کا اختیار ہے. اور خدا کی یسوع مسیح نے کہا کہ تیرا خادم شفا پا لے. جب وہ گھر پہنچا تو وہ چارپائی پر نہیں تھا, شفا پا. اور خدا کی یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا ایمان پورے اسرائیل میں بھی نہیں پایا. حالانکہ صاحب ایمان کون تھے, صاحب کتاب کون تھے, اسرائیلی, اور یہ بغیر اس یہودی مذہب کے اور بغیر کتاب کے یہ بہت بڑی پہچان ایمان کی, بہت بڑی پہچان اپنے پاس رکھتا ہے. اور وہ پہچان کیا ہے؟ خود اس کا تجربہ ہے کہ ایک سے کہتا ہوں جا, جاتا ہے, ایک سے کہتا ہوں آ تو وہ یہیں سے کہہ دے تو میرا تعلق. ایسے تو کہہ رہے ہیں 40 روزے رکھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں اپنا طریقہ کار, روزے رکھ رکھ کے شفا بدلوں میں روزے رکھ رکھ کے نکالتے آتے ہی یا نکالتے. بڑی جنگ لگی ہے, نہ بنا نہ بدلوں کہنے کی بجانے تھی. اور خداوند یسوع مسیح تمام تر واقعات دیکھنے آپ تو تمہیں آ کے گر گئی خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں, اور وہ کہنے لگی کہ ہم جانتی ہیں کہ تم خدا کا بیٹا مسیح ہے, کیا تو ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آیا ہے؟ اب صوبے دار کے علاوہ ذرا بدلوں کا ایمان بھی چیک کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کیا ہے. وہ اس کے اختیار کو سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب میں, ہمیں عذاب میں ڈالنے کی کا اختیار قوت اور قدرت رکھتا ہے. تو میرے چیزوں بتانے کا مقصد, اس میسج کو پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی پہچانیں. اور ایمان کی جہاں تک بات ہے تو مسیح یسوع نے کہا کہ رائی کے دانے کے برابر اگر تمہارا ایمان ہو تو اس پہاڑ سے کہو گے سرک جا. تو یہ کہنا بھی ہے, یہاں پر جو بات ہے وہ کہنے کی ہے, کہیں سے کہہ دیں کہ میرا خادم شفا پا لے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مقام پر خدا موسیٰ سے ناراض ہوا, موسیٰ سے خدا ناراض ہو گیا. خدا نے کہا کہ تو نے میری تقدیس نہیں کی, اس سبب سے تم اب ان کے کنار میں داخل نہیں ہو سکتا. وجہ کیا تھی؟ خدا نے کہا تھا کہ اس پہاڑ سے کہنا تمہیں تجھے پانی دے گا, لیکن حضرت موسیٰ نے جھنجھلا کر نے اسے لاٹھی ماری چٹان کو. خدا نے اس بات کو مائنڈ کیا, برا بنا, کیونکہ لاٹھی مارنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ کہنے کی ضرورت تھی. یہ جو کائنات ہے, بڑی کائنات, وسیع کائنات ہے, اس کائنات کو خدا نے کیسے بنایا؟ لوگ پریشان ہیں اس بات سے. یونانی فلسفی تالیس اینکس مینڈر یہ ابتدائی مفکرین ہیں, علماء ہیں, فلاسفرز ہیں. انہوں نے کائنات کے وجود پر ریسرچ کی ہے, عقلی فکری ایک ریسرچ کی ہے کہ کائنات کے ہونے کی وجہ کیا ہے, یہ بنیادی وعدہ کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ ہوا ہے, کسی نے کہا کہ پانی ہے, کسی نے کہا مٹی ہے. اس کے علاوہ اور بھی فلسفے تھے جنہوں نے عناصر کی بات, اسٹوئکس کی بات, اسٹوئک کی فلسفے کہ آگ ہوا پانی مٹی 4 عناصر مل کر یہ سارا جو وجود ہے, یہ اس کا سبب یہ ہے, پانی ہے, مٹی ہے, ہوا ہے, آگ ہے. لیکن میرے عزیزوں بائبل مقدس کے بتاتی ہے کہ آگ کا, ہوا کا, پانی
पानी का, मिट्टी का खालिक भी एक है। वो तो ये कह रहे हैं कि वजह ये है आग, हवा, पानी, मिट्टी, लेकिन बाइबल ये बता रही है। बाद में आकर के फिलोसफर्स थे हेराक्लिटस और अरस्तु और अफलातून वगैरह, इन्होंने भी इस पर बात की, लेकिन बाइबल ये कहती है, बाइबल में लिखा है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब ये जो कलाम है ये कहे हुए लफ्ज नहीं है, शख्सी कलाम है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये लफ्जी कलाम है। अब कायनात की तख्लीक कैसे हुई है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं, जो कुछ भी पैदा हुआ उसके वसीले से। जब रोशनी की जरूरत थी तो खुदा ने कहा रोशनी होगा और रोशनी होगी। एलोहीम यही हो, वो यही हो। Let there be light and there was light। खुदा ने कहा रोशनी और रोशनी हो। हालेलुया। कहा है खुदा ने रोशनी हो, कहा है, कहने से कायनात वजूद में आई। फिर एक बड़ा खूबसूरत हवाला दिखे कि वो चीजें जो नहीं है उन्हें इस तरह बुला लेता है। बुलाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है? सूबेदार यही तो बात कर रहा है, बहुत गहरी बात कर रहा है। और खुदा मुझे इस बात को खुद समझते, मुझे सब कलमा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? मुझे सब कलाम नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? लेकिन बड़ी बात यह है कि एक गैर कौम का इस भेद से वाकिफ है, कहने के भेद से वाकिफ है, जिससे हमें भी वाकिफ हो। हम कशकोल लेकर लोगों के पीछे ना जाए, जिस हमें शिफा दे दो, शिफा दे दो, शिफा दे दो। नहीं, शिफा आपके मुंह में है। आमीन। क्या करने की जरूरत है? ईमान लाकर कहने की जरूरत है कि मेरे लिए ये काम हो गया। ये है ईमान। यहीं से कह दे तो मेरा खादिम, यहीं से कह दे, इस पहाड़ से कह सकोगे तो सकोगे का मतलब है कुव्वत और कुदरत मिल जाएगी तुम्हें, ये होगी तुम्हारे पास। ये कुव्वत, सकना, किसी चीज को उठा सकना कुव्वत को जाहिर करता है। तो इस पहाड़ से कहोगे ईमान कितना बड़ा, केटू के पहाड़ जितना नहीं, या नारियल के बीज जितना नहीं है, नारियल जितना नहीं, बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा ईमान, जिस पर खड़े होकर आप पहाड़ से कह सके, बड़े से बड़ी मुसीबत से, बड़े से बड़ी परेशानी और बीमारी को कह सके सरक जा, तो सरक जाएगी, वो पहाड़ सरक जाएगा। तूत के पेड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा लग, वो तुम्हारी सुनेगा, वो तुम्हारी सुनेगा। ये चीज खुदा यीशु मसीह ने 2 मकामात पर अपने शागिर्दों को सिखाने की कोशिश की। कौन कौन से मकामात पर? जब 4000 की भीड़ थी और जब 5000 की भीड़ थी। 4000 को, 5000 को। और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? याद आप अपने शागिर्द, तुम ही इनको खाने को दो। उस दिन उनके पसीने छूट गए बेचारों। सारे काम तो खुदा ने यीशु मसीह आप ही कर रहे नहीं है, केड़ा काम सानू दा ये केड़ी जिम्मेदारी साडे कंधे ते पा। और फिर हालात देखो क्या है, बियाबान है, ना तंदूर ना पैसे, पैसे भी थोड़े से हैं, तंदूर भी बड़े दूर है, तो बियाबान। बड़ा अजीब सा बोझ रखा शागिर्दों को। वो पैसे गिन रहे थे, जरूर सब सोच रहे होटल कितना लगी है भाई, होटल भी कौन सा होगा जो 4000 लोगों के लिए खाना तैयार कर दे। आप जाइए किसी भी होटल से कहिए कि 4000 का खाना बोलो नहीं दो इनको, तो कहा कहकर भाई पहला दसना कितने सारे लोगों का खाना खा सकता। यीशु मसीह ने यहाँ पर उन्हें सिखाया कि ये काम तुम कर सकते हो, लेकिन उनके पास इसकी समझ नहीं थी। सूबेदार के पास इसकी समझ है। यीशु मसीह ने
कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा कि 2 मछलियां और 5 रोटियां। शुक्र है कि कुछ था उनके पास, दो लोगों का खाना। और फिर क्या किया गया? क्या किया गया? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसे मेरे पास लाओ। वो 2 मछलियां और 5 रोटियां जो है वो यीशु मसीह के हाथों में आई है। 4000 ने खाना कैसे खाया? जब वो रोटियां यीशु मसीह के हाथ में आई हैं। तो खुदा के काम करने के ये तरीके हैं। अब जब हमें उसने बरकत देनी है तो वो कैसे देगा? जब हम उसके हाथ में कुछ ला कर रखेंगे। और हम ये कहते हैं कि तेनों की जरूरत है, और वो कह रहे हैं कि मेरे घर में खुराक करो, इसी से मेरा इम्तिहान करो। तो अब वो जिम्मेदारी खुदा के जब हाथ में आई है तो कहा कि इन लोगों को अब ये मछलियां बांटना शुरू करो। और वो देते गए। 2 मछलियां 5 रोटियां कितने लोगों ने खाई? 4000 लोगों ने खाई, 5000 लोगों ने खाई। जाइए किसी से भी कह दीजिए जाकर, जो अकल के मातहत अकली लोग हैं, नेशनल है, वो मानेंगे किस बात को? कहेंगे ये कैसे हो? लेकिन ऐसा हो, आमीन। और ऐसा हो सकता है जिसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? ईमान की जरूरत है, कहने की जरूरत है। अपनी जरूरियात को आप हुक्म दिया, क्योंकि वो चीजें जो नहीं है उनको वजूद देने की पीछे जो वजह है वो क्या है? कलाम। जो कहाँ है? लिखे तेरे मुंह में है, तेरे दिल में है, तेरे चौगिर्द में। कलाम कहाँ है? असीते जेब बंद कर के खोल के नहीं भेजो। तो ये तो ठीक है, ये तो किताब में है। ये कलाम कहाँ है? किताब में। इसे दिल में उतारने की जरूरत है। आमीन। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है। अय्यूब कहते हैं मैंने जरूरी खुराक से ज्यादा इसे ज़ख़ीरा किया। और कुतुब में लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने। इस सूबेदार के लिए हैरान बात यह थी कि इसके पास ये सब कुछ नहीं था। एक दुनियावी तजर्बा था, और उसने उस दुनियावी तजर्बे की बुनियाद पर अपने खादिम के लिए मसीह से हालेलुया। और वो कॉलेज ज़्यादा हमारे लिए भी कुछ हो नामुमकिन है। आमीन। सो आए दुआ। चलो हम हाथ के लिए हम दुआ करेंगे, सबको झुकाएंगे।